Welcome back everybody. This is our first video in question bank / numerical series for magnetic effects of current of class 10. Till now we have made 6 video in theory part of this chapter, and if you have not watched our videos then you can check out our channel Point Basics, and there is a playlist named class 10 physics. There we have made videos regarding chapters of physics and question banks for numericals related to those chapters also. We have covered at least 100 questions for each chapter to give you a throughout representation of that, how which type of questions are asked and how you can answer those. Also, we have covered theory in quite a good bit of detail, so you can also get good grasp on theory. So I will urge you to go and check out those videos also. And if you find them useful, then like those videos, share these videos, and subscribe to my channel. Because more you share, more you subscribe, more you comment on our videos, more we get feedback that what type of work we are doing, is it really useful or not. It act as a feedback system for us. So if you find these things useful, these videos useful, or if you want some type of improvement in these videos, then please do uh, put your thoughts in comment section. It is quite useful for us. And also hit like, share, and subscribe button, because it is a zero cost way for you to support us. And when you share these videos, subscribe to our channel, then YouTube algorithm thinks these things are useful, so it recommends them more. So please do like, share, and subscribe also. With this, let's start today's video. Today we will start our exercise or / question bank series for this chapter, and we will start with our first exercise. You can see the exercise question on your right side of the screen. So let's start today's exercise with question number 1. So first question is, what is meant by magnetic field? ये हम थ्योरी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So इसको आप डिफाइन कर सकते हो. It is a space around a magnet where its influence of attraction or repulsion can be experienced by some other magnet or magnetic material. मीन्स एक मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहां पे मैग्नेट के आप इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकें. वो इफेक्ट अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. जब आप इन दोनों को, इनमें से कोई एक ऐसा कोई भी आप एक्सपीरियंस कर पाते हो मैग्नेट के अराउंड, तो उसका मीनिंग क्या है? आप उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो. तो उस स्पेस को ही क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो स्क्रीन क्लियर करते हैं. सो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट. नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो हमें मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, और उसके लिए क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हमें वो भी बताना है. सो लेट अस ड्रॉ. सबसे पहले हम एक मैग्नेट बनाते हैं. तो मैग्नेट बनाने के लिए हम जस्ट एक बेसिक क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल बना देंगे. तो सपोज ये हमारा मैग्नेट है. अब मैग्नेट में ये हमारा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है,
एंड यहाँ पे साउथ पोल। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, 2 अपर साइड 2 नीचे की साइड बनाएंगे, बिकॉज वी हैव स्पेस कंस्ट्रेंट्स। तो हम यहाँ पे 4 लाइंस यूज करते हैं। एंड दिस विल बी आवर लास्ट लाइन। सो ये हमने अंदर वाला पार्ट बना दिया, अब हम बाहर वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। आप और बेटर वे में बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड योर ड्राइंग इज। सो ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड को एक बार मैग्नेट के अराउंड शो कर सकते हो, और इनकी जो डायरेक्शन होती है बाहर में नॉर्थ से साउथ होती है। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ जाएंगी, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ मूव करेंगी लाइक दिस। यहाँ भी नॉर्थ से साउथ मूव करेंगे, और अंदर साउथ टू नॉर्थ मूव। सो ऐसे आप एक बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट कर सकते हो। और इनको प्लॉट कैसे किया जाता है, इसके लिए आप क्या लेते हो, एक कंपास लेते हो। सपोज ये आपका कंपास है, अब आप ये कंपास लोगे और इस कंपास को एक पोल से रखोगे और फिर उसको इधर उधर मूव करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप उसको मूव करोगे तो जो उसकी नीडल है, जो आपको इसके बीच में एक नीडल दिखाई दे रही है, वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको कंपास को इस तरीके से मूव करवाना है कि जो उसकी कंपास की उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट ना करे, उसकी डिफ्लेक्शन जहां पे है वो वहीं पे रहे। जब इसको आप ऐसे मूव कराओगे और उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तब जिस पाथ पे आप मूव कर रहे हो वो पाथ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पाथ है। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो जो डिवाइस यहाँ पे पूछा गया है कि आप किस डिवाइस का यूज करोगे, तो वो डिवाइस होगा कंपास, कि हम कंपास का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर आपको ये शो करना है तो हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं। सपोज लीजिए हमने ये व्हाइट कलर का पेपर ले लिया, हम इसमें फिल कर देते हैं व्हाइट कलर। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे एक कंडक्टर ले सकते हो। तो हमने ये कंडक्टर लिया, रेड कंडक्टर, और यहाँ से पेज के अंदर गया है। इसके बाद हम इसको थोड़ा डॉटेड शो करेंगे, सो दैट हम ये शो कर पाए कि वो पेज से यहाँ पे ये पेज के हम इसको नीचे वाला एरिया शो कर रहे हैं, कि ये पेज के नीचे वाला एरिया है। जो ऊपर हमने नॉन डॉटेड शो किया है, ये वाला पार्ट पेज के ऊपर वाला एरिया है, और ये वाला पार्ट पेज के नीचे वाला एरिया, बिकॉज ये 3D में है। और अब जस्ट हम इसके साथ क्या करेंगे, अब हम इसके साथ एक रेजिस्टेंस और बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया आर, और यहाँ पे एक हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। तो इस जब हम ये सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन ये होगी, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा, और इस वायर से भी करंट फ्लो करेगा।
और अब हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जब भी आपके पास कोई कंडक्टर हो और उससे आप करंट को फ्लो करवाओगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब हम उसी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे अगर हमें शो करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड आयरन के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स डाल देंगे। सपोज ये हमने इसके अराउंड आयरन के पार्टिकल्स डाल दिए। ये जब हम इसके अराउंड आयरन के पार्टिकल्स डाल दिए और फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टू प्रोसेसेस करेंगे। नंबर वन, एक तो यहाँ पे हम स्विच लगा देंगे सो दैट हम इसको ऑन ऑफ कर सकें। हम इस सर्किट को अपने हिसाब से कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा जो पेपर है, जो व्हाइट कलर का आपको पेपर दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्या करेंगे, टैप करेंगे। किसकी हेल्प से, हैंड की हेल्प से हम यहाँ पे टैपिंग करेंगे बार बार। तो सर्किट को ऑन ऑफ करने से और टैपिंग करने से क्या होगा कि जब आप सर्किट को ऑन कर रहे हो यहाँ पे करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्वाइट वीक होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसलिए जब आप टैप करते हो पेपर को तो जो आपके आयरन के स्मॉल पार्टिकल्स हैं कुछ टाइम के लिए हवा में आते हैं, और जब वो हवा में आते हैं तो उनके और पेपर के बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड उन पे इजीली एक्ट कर पाती है और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एडजस्ट कर पाती है। सो जब आप इनको टैप करते हो और सर्किट को बार बार ऑन ऑफ करते हो तो उस केस में क्या होगा, जो आपके आयरन पार्टिकल्स हैं ये कुछ ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। हम आपको इनको करके दिखाते हैं। ये क्लोज सर्कल्स की शेप ले लेंगे। We don't have that yet. ओके, हम उसको नॉर्मल ड्रॉ ही कर देते हैं। तो ये ऐसे क्लोज सर्कल्स की शेप ले लेंगे। एग्जैक्टली आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में सर्कल्स नहीं दिखाई देंगे, पर आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम जब इसको बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली इसको करेंगे तो आप ये देख पाओगे कि जो आपके आयरन पार्टिकल्स हैं वो ऐसे सर्कल्स में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना स्टार्ट हो। कुछ पार्टिकल्स होंगे जो इनमें एडजस्ट नहीं होंगे। वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है और वेट ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उन पे इतने अच्छे तरीके से एक्ट नहीं कर पाती, उन पे उतना फोर्स नहीं लगा पाती कि उनको एडजस्ट कर सके। सो ऐसे आप प्रोसेस करोगे। आप प्रोसेस में क्या करोगे, एक तो सर्किट को बार बार ऑन ऑफ करोगे और दूसरा आप पेपर पे स्लाइटली टैपिंग करोगे जिससे जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा टाइम हवा में जाए और फिर मैग्नेटिक फील्ड को उनके ऊपर एक्ट करने का एनफ टाइम मिल जाए। बिकॉज जब तक वो पेपर के ऊपर होते हैं, पेपर पे और उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन उनको इतना इजिली एडजस्ट नहीं होने देता। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। सो फोर्थ में मेंशन किया गया है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये बताना है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती और क्लोज कर क्यों होती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज continuous curves around a magnet which represent direction and intensity of magnetic field
at any point nearby to magnet। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक बेसिक डेफिनेशन कि ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती है और ये मैग्नेट के अराउंड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है और इंटेंसिटी बताती है। नाउ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट नंबर ए, कि ये एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, तो इसका रीजन हम ऐसे लिख सकते हैं दैट एट एनी पॉइंट टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives direction of magnetic field। ओके, तो इसमें आप एक डायग्राम भी बना सकते हो यहाँ पे साथ में, अगर आप उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो कि आप यहाँ पे एक ऐसे मैग्नेट बना के उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बना के और यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हो, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और फिर यहाँ पे किसी पॉइंट पे ऐसे एक टेंजेंट बना के बता सकते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना हो गया। अब आगे हमें लिखना होगा if two curves intersect then at point of intersection we can draw two tangents। It means two directions of field। मीन्स अब हम क्या करेंगे, हम दो फील्ड लाइंस को लेके आएंगे। ये सपोज हमारी पहली फील्ड लाइन है और ये हमारी दूसरी फील्ड लाइन है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो अब हम यहाँ पे टेंजेंट्स बनाएंगे। ये पहली के लिए टेंजेंट हो गया और ये दूसरी के लिए टेंजेंट हो गया, तो ऐसे आपके पास दो डायरेक्शन आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन और इम्पॉसिबल आप ऐसे बोल सकते हो, हेंस दे डोंट क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे क्या बताती हैं, फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अगर दो फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट से होके जाएंगी तो उस एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेंगे आपको, मींस एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई, और एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करने वाली। सो विद दिस इसका ए पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ बी पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज कर्व्स, कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर्व होती है, तो इसका रीजन हमें बताना है। तो जब हम बी है इसका हम रीजन लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, so magnetic field lines are representation of magnetic field of a magnet। अभी आपको पता है कि मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और हमने थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आप किसी मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर दो
तो भी उसके पास दो ही पोल रहेंगे। मीन्स आप मैग्नेट को बीच से तोड़ देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो नॉर्थ और साउथ पोल अलग नहीं होते। एंड तो आप यहाँ पे लिखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, एंड वी नो that poles of magnet always occur in pairs. They can't be separated. It means magnetic field lines has no starting point and no ending point. So they are close and continuous. तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज एंड कंटिन्यूस क्यों होती हैं, क्योंकि मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं और उन दोनों पोल्स को आप सेपरेट नहीं करते, वो दोनों पोल हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होने के लिए पोल्स का अलग अलग होना जरूरी है, और इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज एंड कंटिन्यूस होती है। इसका जो एक एनालॉग है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे क्लासेस में पढ़ोगे, तो उन केसेस में चार्जेस दोनों अलग अलग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, तो उसकी वजह से उन लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, और वो क्लोज एंड कंटिन्यूस नहीं होती। So this is the explanation for question number 4. अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं। मेंशन टू पैरामीटर दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। तो इसके टू पैरामीटर बताने हमें जो इसको कंप्लीटली डिफाइन कर सके। और सेकंड पार्ट है इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉस एट ए पॉइंट व्हाट डज इट इंडिकेट। तो ये वाला पार्ट हम अभी जस्ट कर चुके हैं कि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि वहां पे दो डायरेक्शन है, और अगर दो डायरेक्शन है तो इम्पॉसिबल है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी। सो बी हम कर चुके हैं, ए का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अभी हम इसकी जो नेसेसरी पार्ट है मेंशन टू पैरामीटर दैट आर नेसेसरी, हम ये करेंगे। पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए का जो हमें यहाँ पे बताने टू इंपोर्टेंट पैरामीटर्स। मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो जो टू इंपोर्टेंट पैरामीटर्स होंगे, पहला पैरामीटर है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंड इंपोर्टेंट पैरामीटर है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर में क्या आता है, ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसका थोड़ा आइडिया आपको मिल चुका होगा। स्केलर में आता है डिस्टेंस, स्पीड, वेक्टर में आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है, स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं वो एक वेक्टर है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। और वही यहाँ पे आएंगे दैट हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है।
हमें इन दोनों को कंसीडर करना होगा, ये इसके लिए नेसेसरी पॉइंट्स होंगे। तो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a compass needle is placed near a current carrying straight conductor. State the observation of the following cases and give the reason. Magnitude of electric current is increased, the compass needle is displaced away from the conductor. तो पहले हम ये कंडक्टर वाला पार्ट देख लेते हैं कि एक कंडक्टर है, उसमें आप करंट फ्लो करवाओगे। तो जब आपके पास एक कंडक्टर हो, तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इससे हम एक करंट फ्लो करवाते हैं, तो हम जस्ट इसको कनेक्ट कर देते हैं सर्किट से करंट फ्लो करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस हम किसके लिए लगाते हैं, करंट कंट्रोल करने के लिए, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस आर हो गया, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई, बैटरी की पोटेंशियल वोल्टेज वी और पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे करंट डाउन है। सो हमने इतना कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड थंब रूल लगाएं, और अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस टाइप की बनेगी, वो बनेगी, अगर आप उसको ऊपर की तरफ से देख रहे हो तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, जो फील्ड होगी हमारी वो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन में आए, और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्लोज एंड कंटिन्यूस होती है, लाइक दिस। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना ली। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके पास एक कंपास नीडल रख देते हैं। तो सपोज कीजिए एक कंपास है और ये इसकी नीडल है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक आती है। ओके, आप इससे एक बेटर डायग्राम बना सकते हो इफ यू लाइक। ये जो कंपास नीडल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है अभी, और मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग है कि जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ साउथ पोल बनेगा और नीचे की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, पहला क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तो जो हमारा पार्ट ए है और हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज हो गया, सो एज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीजेस, तो करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, जो फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी वी विल सी मोर डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल। तो जो कंपास की नीडल है इसमें और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, किसकी तरफ, इस वायर की तरफ। अब आते हैं सेकंड केस पे, ये सेकंड केस में क्या हो रहा है, तो जो हमारा सेकंड केस है इसमें हो रहा है कि कंपास नीडल को हमने दूर कर दिया, कंडक्टर से हम दूर ले गए। सो इट्स लाइक कि जो हमारा एक कंपास था इसको हम यहां से दूर लेके चले गए। तो जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर होता जाएगा, और इसकी डिफ्लेक्शन क्या होती जाएगी, लेस होती जाएगी, ये अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आता जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज कंपास मूव्स अवे फ्रॉम कंडक्टर, मैग्नेटिक field decreases
and deflection of compass also decreases and it moves toward its original position। मतलब कि जब हम इसको फील्ड से जब तक ये बाहर था तो वो उस ओरिजिनल सिचुएशन में ये मूव कर जाएगा। जब आप इसको अंदर लेके आओगे तो इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, बाहर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। जब आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड इन द मिड बिटवीन, अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है, ये हमारी जो एफर्ट है आपको इससे आपको वैल्यू मिल रही है, देन प्लीज कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट and it also motivates us. So question number 7, state how the magnetic field produced by a straight conductor carrying current carrying conductor depends upon current distance from the conductor. So हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या 1 बाय आप बोल सकते हो डिस्टेंस के। सो जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing through it. If we increases current, then value of field will also increase and vice versa. Vice versa means अगर आप फील्ड करंट की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये हो गया ए पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पे। डिस्टेंस के बारे में हमें ये पता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली proportional to distance from conductor. So lesser is the distance, more is the field, and as we move away from conductor, then field decreases. तो इसको आप ऐसे आंसर कर सकते हो कि जैसे आप दूर जाओगे फील्ड कम होती जाएगी, पास आओगे फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। 8 की तरफ मूव करते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग।
there is either a convergence or a divergence of magnetic field lines near the end of a current carrying straight solenoid. And second, the current carrying solenoid when suspended freely rests along a particular direction. तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट सोलेनॉइड गिवन है, करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो हम पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। सो डायग्राम आपका कैसे बनेगा, डायग्राम के लिए हम एक ऐसे सोलेनॉइड बनाएंगे और फिर यहां से हम टू फील्ड लाइन ही डिनोट करते हैं, एक फील्ड लाइन ऊपर के लिए और एक फील्ड लाइन नीचे के लिए। नाउ अब हमें ये बताना है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्यों होती है। तो अगर आप सपोज करो ये नॉर्थ पोल है सोलेनॉइड का और ये साउथ पोल है, तो यहाँ से नॉर्थ पोल से ऐसे बाहर जाते हैं और साउथ पोल में ऐसे इनवर्ट होता है। तो जब ये नॉर्थ पोल से आउट की तरफ बाहर की तरफ मूव कर दिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है स्प्रेड होना, यहाँ पे फील्ड लाइन स्प्रेड हो रही है और यहाँ पे फील्ड लाइन एक दूसरे के पास आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा आप ऐसे बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव more freely inside the magnet as compared to air। मीन्स हवा के मुकाबले जो इसके अराउंड एयर है उसके कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर मोर इजीली मूव करती है। हेंस मैग्नेटिक फील्ड is more inside the magnet and less in air। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और बाहर कम होगी। अब अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पता है कि जब वो एक दूसरे के पास होती है तो वहां पे वैल्यू ज्यादा होती है, जब वो एक दूसरे से दूर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू कम होती है। तो यही रीजन है, बिकॉज अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है इसलिए उनको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा और जैसे ही वो बाहर आती है वहां पे फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए उनको एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा। Hence, inside the magnet, field lines are closer as compared to outside। So they converge upon entry and diverge upon exit। अंदर फील्ड वैल्यू ज्यादा है, बाहर फील्ड वैल्यू कम है, इसलिए अंदर उनको पास होना पड़ेगा और बाहर वो दूर दूर हो सकती है। इसलिए जब वो एंट्री लेंगी तो उनको पास आना पड़ेगा तो वो कन्वर्ज कर जाएंगी और जब वो एग्जिट करेंगी तब उनको दूर जाना पड़ेगा तो वो डाइवर्ज कर जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, इसको हम क्लियर कर देते हैं। सो 8 पार्ट 2 ये पूछा गया है कि सोलेनॉइड जो है वो सस्पेंड होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों आती है। तो हमें ये पता है सोलेनॉइड behaves like a magnet
when current flows through it, and as a normal magnet when suspended freely adjusts itself according to magnetic field of earth. Same is done by solenoid. मीन सोलेनोइड में आप जब करंट फ्लो कराओगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे अगर आपके पास एक नॉर्मल मैग्नेट हो, आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कर लेता है। तो सोलेनोइड भी सेम वर्क ही करेगा, वो भी अपने आप को अर्थ की फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो 9 में यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी नॉर्मल डायरेक्शंस बना लेते हैं। सो दिस इज ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे पास 4 डायरेक्शन हो गई। सो अब हम इसमें क्या बना लेते हैं, एक कोयल बना लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोयल ही मेंशन की गई है, सर्कुलर कोयल मेंशन की गई है। और ये क्या है, वर्टिकली इन साउथ, नॉर्थ साउथ प्लेन है, मींस ये नॉर्थ साउथ प्लेन में एक्सटेंड करती है। सो समथिंग लाइक दिस, वर्टिकली नॉर्थ साउथ प्लेन में है, और ईस्ट से देखने पे, मींस अगर यहां से आप देखते हो तो इसका जो करंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मींस समथिंग लाइक दिस, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने आपको बताया है ऑलरेडी कि जो एस होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ हो जाता है ऐसे। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। सो अब अगर आपको डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, सो यहाँ पे अब आपके पास 2 डायरेक्शन अवेलेबल होंगी, एक तो जो कोयल के अंदर वाली डायरेक्शन है और एक जो कोयल के बाहर वाली डायरेक्शन। तो जो कोयल का इनसाइड है, सो इनसाइड द कोयल जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है, तो इनसाइड द कोयल हो जाएगी वेस्ट टू ईस्ट। और अगर आप आउटसाइड ऑफ द कोयल देख रहे होंगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पॉइंट के लिए चाहते हैं, आप कोयल के अंदर वाली फील्ड चाहते हैं, कोयल के बाहर वाली फील्ड चाहते हैं, ये डायरेक्शन हो जाएगी। अभी सेम इसमें सेकंड पार्ट है, दैट vertically in east west plane and observer looking from south। so हम क्या करते हैं, पहले इसको पूरा रन कर देते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से सेम कॉन्फ़िगरेशन हम प्लॉट करते हैं अपनी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अब की बार क्या है, वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकल है। तो अगर ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकल है तो आपकी जो कोयल होगी वो ऐसे बनेगी, ओके। जो उसका वर्टिकल एक्सिस होगा वो ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट वाले प्लेन में होना चाहिए, और जो नॉर्थ साउथ है वो उसके परपेंडिकुलर। नाउ
ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम द साउथ सीज करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो साउथ वाला पर्सन है उसको क्या दिख रहा है कि एक क्लॉक जो करंट है वो एंटी क्लॉक है। तो साउथ वाले को एंटी क्लॉक दिख रहा है, तो नॉर्थ वाले को क्या दिख रहा है, क्लॉक वाइज दिख रहा होगा। क्लॉक वाइज मीन्स होता है साउथ। तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। तो अब फिर से आप डायरेक्शन बता सकते हो। तो इनसाइड द कोयल फिर साउथ टू नॉर्थ प्रोपोगेट करेगी, तो नॉर्थ डायरेक्शन जो ये वाली बाहर वाली डायरेक्शन है ये हो जाएगी N2S, और आउटसाइड ऑफ कोयल क्या हो जाएगा S2N। यहाँ पे देखिए आप, हमारा नॉर्थ, हमारा साउथ और मैग्नेट का जो कोयल के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ साउथ अपोजिट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ये NS लिख रहे हैं तो ये हम एक्चुअल वाला NS लिख रहे हैं जो डायरेक्शन का नॉर्थ साउथ है, ना कि मैग्नेट का नॉर्थ साउथ। मैग्नेट का नॉर्थ साउथ अलग होता है, डायरेक्शन का नॉर्थ साउथ अलग हो सकता है। So now third point, vertically, horizontally and observer looking from the below sees to the current clockwise direction। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि इसको कैसे रखा गया है। तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में शायद कुछ प्रॉब्लम। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड्स किस पे करती है, ऐसे 3 फैक्टर बताने। तो 2 फैक्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं एक बार जब हमने वायर के लिए किया था। तो पहला फैक्टर होता है करंट होता है, दूसरा फैक्टर होता है डिस्टेंस, एंड थर्ड फैक्टर हो जाएगा मटेरियल, कि किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी ऐसे होती है कि अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती है, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। करंट के साथ फील्ड बढ़ती है और डिस्टेंस के साथ फील्ड कम हो जाती है। और जो मटेरियल है, मटेरियल स्पेसिफिक होती है, मींस अगर आप कोई ज्यादा अच्छा मटेरियल लेते हो जिसमें अच्छी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा, वरना कोई दूसरा मटेरियल है जो डिक्रीज करेगा। तो वो मटेरियल स्पेसिफिक होती है। कुछ मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अच्छे होते हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। और कुछ होते हैं जो अच्छे नहीं होते, लाइक एल्यूमिनियम, ये अच्छे नहीं होते। तो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ सोलेनोइड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सर्किट डायग्राम बनाना है। तो ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि आप एक ऐसे सोलेनोइड लोगे, फिर आप उसको सर्किट से कनेक्ट करोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे, और ये पोटेंशियल V हो गया, रेजिस्टेंस R हो गया। और अब अगर आप उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, एक आयरन की रोड डाल देते हैं। तो ये प्रिपेयर हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर हम इसके अंदर से फील्ड लाइंस को शो करना है तो फील्ड लाइंस इसके अंदर से ऐसे प्रोपेगेट करेंगी। हम अभी 2 ही फील्ड लाइन शो करेंगे, तो स्पेस कंस्ट्रेंट है हमारे पास और हम इसको हर वैल्यू नहीं शो कर सकते। और सपोज अगर ये नॉर्थ पोल बनता है और ये साउथ पोल बनता है तो ये चेंज हो सकता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, डिपेंडिंग अपॉन की ओरिएंटेशन कैसी है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर फील्ड प्रोपेगेट करती है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ करती है। सो विद दिस आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम एज यूजुअल हमारी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे और उनको भी कंप्लीट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर आर। एंड एज यूजुअल अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिलती है, आपको जानकारी मिलती है, आपके कंसेप्ट्स इंप्रूव होते हैं, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है, देन प्लीज शेयर these videos, like these videos. If any doubt, comment in the video comment section and subscribe to our channel.
because your feedback is necessary and important for us. More you give us feedback, more we will be able to improve our lectures, our way of representation, and everything else. So do give your comments, your feedbacks, and do share with your friends, your classmates, your friends, your schoolmates, and subscribe to our channel also. With this we will meet in next video with more questions. Till then, thanks for watching.